Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Sufa Intellectual School. How are you all? I hope you all are fine. My name is Kishwar and I will teach you maths. I hope you will enjoy learning maths with me. Before we start our lecture, we have to recite dua. So repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi kanasta'in ya fattahu ya fattahu ya fattah. Now we can start our lecture. Grade 1, open your maths book. Today we are going to continue our first unit and the unit name is whole numbers. In this unit we have learned before counting numbers from 0 to 100 and their names, after, between and before number concept. Now we are going to start our topic and our today's topic is comparing and ordering number. Comparing means relating objects and numbers with each other. Compare का मतलब क्या होता है? टू नंबर्स को आपस में कंपेयर करना या टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो पेंसिल्स हैं, एक लॉन्गर वन है और एक शॉर्टर वन है, तो हम क्या कहेंगे? दिस पेंसिल इज लॉन्गर वन एंड दिस पेंसिल इज शॉर्टर वन. और अगर एक का कलर येलो है और सेकेंड वन का कलर रेड है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या कहेंगे? दिस वन इज येलो and this one is red pencil. ये हम दोनों पेंसिल्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है? This pencil writes well and this isn't writes well. ठीक है? ये हम क्या कर रहे हैं? टू पेंसिल्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो उसका कलर कौन सा है, उन दोनों का कलर कौन सा है, which pencil is shorter and which pencil is longer, and which pencil writes well and which pencils doesn't write well. Okay? इसी तरह हम नंबर्स का भी आपस में कंपैरिजन करते हैं. ठीक है? So our today's topic is comparing and ordering numbers. Ordering numbers का मतलब क्या होता है? नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना, नंबर्स को तरतीब से लिखना. जैसे हमारी काउंटिंग है ना, 0 से स्टार्ट होती है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीक्वेंस में है काउंटिंग. अगर हम जंबल कर दें सारे नंबर्स को 1 10 15 25 30 100, ये सब क्या होगा? ये सीक्वेंस में काउंटिंग नहीं है. सीक्वेंस में कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जैसे काउंटिंग हमारी अप टू 100 और अप टू सो ऑन जाती है काउंटिंग. ये हमारी काउंटिंग जो है वो सीक्वेंस में है. अगर हम नंबर्स को जंबल करके लिख देंगे तो फिर वो काउंटिंग ऑर्डर में नहीं होगी और सीक्वेंस में नहीं होगी. ऑर्डर का मतलब भी है कि तरतीब में लिखें, और तरतीब में लिखना ये तरतीब में लिखें, और सीक्वेंस का भी मतलब है तरतीब में नंबर्स को लिखना और तरतीब में नंबर्स को रखना. ठीक है? Okay. In this topic we will discuss more and less numbers, more and less than concept, greater than, smaller than and equal to
कंपैरिजन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। वन डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और कहाँ पे एंड होते हैं, 9 पे। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 0 एंड ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9। सो हम 0 to 9 तक नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे और ग्रेटर नंबर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू नंबर्स के बारे में जानेंगे और मोर एंड लेस देन कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Here we have a video. Let's watch a video to understand the concept of more or less than. Hey friends, we compared objects on basis of their sizes, weights, length and height. Now let's learn to compare objects based on their quantities. When we have two objects of different quantities, one is more in quantity and the other is less. Look at these boxes of sweets. This box has more sweets and this box has less sweets. The cookies in red plates are more, while the cookies in blue plate are less. The water in the left jar is more than the water in the right jar. Look, there are some birds sitting on these trees. The long branch has more birds. The short branch has less birds. That's all for today. When we meet next time, we will learn about one more than and one less than a number. Goodbye for now. Okay. Now moving to the next one. I hope you liked the video. And got a little bit idea about more or less than concept. More means ज़्यादा and less means कम, थोड़े. Here we have a picture which shows apples and oranges. Can you count the apples in this picture? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many apples are there? 6 apples are there. And count the oranges. How many oranges are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 oranges and 6 apples. Now tell me, 6 is greater or 7 is greater? 7 is greater. Or as you can see, oranges are more than apples. Oranges are more than in quantity than apples. Oranges क्या है? Quantity में apples से ज़्यादा है. So oranges are more than apples. And apples are less than oranges. So moving to the next one. Here we have comparing and ordering numbers.
and more and less than. We will talk about more and less than. When we compare objects on the basis of quantity, we count them and then we decide which are more and which are less. जैसे हमारे पास ऑरेंजेस थे और एप्पल्स थे, हमने क्या किया है, उनकी क्वांटिटी को जज किया है और फिर हमने उनको काउंट किया है. तो हमारे पास एप्पल्स लेस क्वांटिटी में थे और ऑरेंजेस जो थे हमारे पास वो मोर क्वांटिटी में थे. तो हमने क्या कहा, फिर हमने डिसाइड किया कि ऑरेंजेस आर मोर देन एप्पल्स, ऑरेंजेस आर मोर देन एप्पल्स. हम इसी तरह से जब क्वांटिटी के हिसाब से जब नंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को चेक करते हैं तो हम मोर और लेस देन उनकी क्वांटिटी के बेस पे चेक करते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हियर वी हैव योर बुक पेज. Count, write and tick the box with more objects. Here we have in this picture shuttles and rackets. We have to count the shuttles and then we have to count the rackets and then we have to tell that shuttles are more or rackets are more. Which are more in quantity? So we have to count the shuttles first and then we have to count the rackets. Now start counting with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 shuttles. How many shuttles are there? 8 shuttles. Here you have to write 8. And now tell me how many rackets are there. Start counting with me. 1, 2, 3, 4. How many rackets are there? 4 rackets are there. Here you have to write 4. Now tell me 8 is greater or 4 is greater? 8 is greater. 8 is greater and shuttles are more than rackets. Shuttles are more than rackets. Rackets are less than in quantity than shuttles. So you have to tick in this box. You have to tick in this box. Now moving to the next one. Here we have chickens and then we have baby ducklings. First we have to count the chickens and then we have to count the baby ducklings. How many chickens are there? Let's start counting. 1, 2, 3. There are only 3 chickens there. And how many ducklings are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 ducklings. Here you have to write 6 and here you have to write 3. Now tell me, 6 is greater number or 3 is greater number? 6 is greater number. So we have ducklings more than the chickens. Ducklings are more in quantity than chickens. So we have to take here in this box to show more than ducklings in this picture. You have to take in this box. Now moving to the next one. Here we have greater, smaller and equal to concept. What is greater, what is smaller and what is equal to? Greater means bigger in quantity or size. For example, अगर आपके पास
एक स्मॉलर टेडी बेयर हो और एक बिगर टेडी बेयर हो, एक बिग ह्यूज टेडी बेयर हो, तो आपके पास दोनों टेडी बेयर्स ही होंगे, बट साइज दोनों का डिफरेंट होगा। एक इतना बड़ा टेडी बेयर और एक स्मॉलर टेडी बेयर होगा। सो दोनों के साइजेस क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो कौन सा बिगर वन होगा, जो बहुत बड़ा टेडी बेयर हो, ठीक है, और स्मॉलर वन कौन सा होगा, जो छोटा सा होगा, ठीक है। उसको हम कहेंगे दिस इज अ स्मॉल टेडी बेयर एंड दिस इज अ ग्रेट बिगर टेडी बेयर, बिग टेडी बेयर। So greater means bigger in quantity or size. Quantity, for example, जैसे हमने चिकन्स और डकलिंग्स को देखा, तो हमारे पास क्वांटिटी में डकलिंग्स ज्यादा थी। फिर हमने रैकेट्स और शटल्स की एग्जांपल ली, तो हमारे पास क्वांटिटी में शटल्स ज्यादा थी, रैकेट्स कम थे। तो क्वांटिटी में जो चीज ज्यादा होती है वो उसको क्या हम कहते हैं, ग्रेटर। उसको काउंट करते हैं, वो जिस क्वांटिटी में हो, जिस नंबर में हो। जैसे हमारे पास डकलिंग्स की क्या क्वांटिटी थी, हमारे पास डकलिंग्स कितनी थी, 6 डकलिंग्स थी, और चिकन्स कितनी थी, ओनली 3 चिकन्स। सो हमारे पास चिकन्स क्वांटिटी में कम थी और डकलिंग्स क्वांटिटी में ज्यादा थी। सो चिकन्स नंबर में 6 थी एंड चिकन्स नंबर में 3 थी और डकलिंग्स नंबर्स में 6 थी। सो डकलिंग्स आर great in number and more in quantity, ठीक है। जो चीज नंबर में ज्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। ये चीज हमारे पास ग्रेटर नंबर में है, ठीक है। और स्मॉलर मीन्स लेस इन क्वांटिटी एंड स्मॉलर इन साइज। जैसे टेडी बेयर की हमने एग्जांपल ली, तो हमारे पास जो बड़ा टेडी बेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बिग टेडी बेयर, और जो स्मॉल टेडी बेयर होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉलर टेडी बेयर, ठीक है। और जैसे हमने रैकेट्स और शटल्स की एग्जांपल पीछे पढ़ी है, तो उसमें हमारे पास क्या था, रैकेट्स क्वांटिटी में कम थे। रैकेट्स की का नंबर, रैकेट्स हाउ मेनी rackets are there, only 4 rackets are there, only 4 rackets are there. And how many shuttles are there, 8 shuttles are there. So numbers में हमारे पास shuttles कितनी थी, 8 थी, और numbers में हमारे पास rackets कितने थे, 4 थे। So smaller number में हमारे पास क्या थे, rackets थे, और ग्रेटर नंबर में हमारे पास क्या था, शटल्स थी, ठीक है। सो शटल्स क्वांटिटी में मोर थी और नंबर्स में ग्रेटर नंबर में थी, ठीक है। और रैकेट्स क्वांटिटी में लेस थे और नंबर्स में स्मॉलर थे, ठीक है। और इक्वल टू का क्या मतलब होता है, सिमिलर इन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 शटल्स हैं और 80 रैकेट्स हों, तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट रैकेट्स एंड शटल्स आर सेम इन क्वांटिटी, सेम इन नंबर्स। और चिकन्स और डकलिंग्स भी हमारे पास सेम क्वांटिटी में हो, 8 डकलिंग्स और 8 ही चिकन्स हो, तो हम क्या कहेंगे, डकलिंग्स एंड चिकन्स आर सेम इन क्वांटिटी, ठीक है। जो चीज सेम नंबर में होगी और सेम क्वांटिटी में होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कि दोनों नंबर्स में सेम है, दोनों क्वांटिटीज में सेम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
Now, here we have the signs of greater, smaller and equal to. ग्रेटर नंबर को शो करने के लिए हमारे पास साइंस होते हैं. हम ग्रेटर देन नहीं लिखते, बल्कि साइन से शो करते हैं कि ये नंबर जो है ये ग्रेटर नंबर है अदर वन से. ठीक है. सो हमारे पास ग्रेटर नंबर जो होता है उसका साइन ऐसे होता है. एलिगेटर का ओपन माउथ आपने देखा हुआ है कभी? एलिगेटर का ओपन माउथ, जब वो किसी चीज को खाने लगता है तो वो इतना बड़ा अपना मुंह खोलता है, इतना बड़ा अपना माउथ खोलता है और एकदम से वो फिशेस वगैरह को या जो भी वो खाना चाहता है वो एकदम से क्यों खा लेता है. इतना बड़ा मुंह माउथ ओपन करता है अपना. सो उसके ओपन माउथ को क्या कहते हैं? ग्रेटर देन साइन. ओपन माउथ, एलिगेटर्स ओपन माउथ शोज ग्रेटर देन साइन. एलिगेटर्स हमेशा ग्रेटर नंबर्स में खाता है, ह्यूज क्वांटिटी में खाता है चीजों को, क्योंकि उसको ज्यादा भूख लगती है. सो वो ज्यादा चीजें खाता है, ज्यादा नंबर्स में चीजें खाता है. उसको लेस क्वांटिटी में चीजें अच्छी नहीं लगती. ठीक है. सो वो हमेशा ग्रेटर नंबर्स में चीजें खाता है, मोर नंबर्स में चीजें खाता है, मोर क्वांटिटी में चीजें खाता है. ठीक है. सो एलिगेटर का ओपन माउथ क्या शो करता है? ग्रेटर देन साइन को शो करता है. एलिगेटर का ओपन माउथ किस चीज को शो करता है? ग्रेटर नंबर को शो करता है, ग्रेटर देन साइन को शो करता है. और स्मॉलर नंबर का फेस कैसे होता है? स्मॉलर नंबर का फेस बिल्कुल सेम ग्रेटर नंबर की तरह होता है, बट उसका फेस की साइड चेंज हो जाती है. ग्रेटर नंबर का फेस जो माउथ है वो ओपन किस साइड पे होता है? राइट साइड पे होता है. ग्रेटर नंबर को का साइन जो होता है उसका माउथ किस साइड पे ओपन होता है? लेफ्ट साइड पे. और स्मॉलर नंबर का को शो करने के लिए जब हम ओपन माउथ बनाते हैं साइन का, तो हमारे पास ओपन माउथ किस साइड पे बनता है? राइट हैंड साइड पे उसका ओपन माउथ बनता है. एलिगेटर्स हमेशा बड़े नंबर्स को ह्यूज क्वांटिटी में चीजें खाता है, इतनी बात याद रखिएगा. और ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर में जब भी आपके पास ओपन माउथ साइन का होगा तो वो हमेशा ओपन माउथ ग्रेटर नंबर की तरफ होगा. कभी भी स्मॉलर नंबर में या ग्रेटर नंबर में ओपन फेस जो है साइन का वो स्मॉलर नंबर की तरफ नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर वैल्यू की तरफ ओपन माउथ होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 8 है और 3 है तो आपके पास ओपन फेस है, ये इसका ओपन फेस है, ये इसका ओपन फेस है. इस फेस की तरफ आप यहाँ पे 8 लिखेंगे और क्लोजर फेस की तरफ यहाँ पे आप 3 लिखेंगे. और इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे? 3 is less than 8. 3 is less than 8. यहाँ पे क्लोजर फेस की तरफ हम क्या लिखेंगे? 3. और ओपन माउथ की तरफ हम क्या लिखेंगे? 8. ठीक है. और रीड आउट कैसे करेंगे? 3 is less than 8. और अगर ग्रेटर नंबर को शो करना है तो क्या करेंगे? 8 की पोजीशन चेंज कर देंगे. 8 ओपन माउथ की तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, 8 यहाँ पे लिखेंगे. 8
ओपन माउथ वाली साइड पे लिखेंगे 8, ओपन माउथ वाली साइड पे लिखेंगे 8 और क्लोजर माउथ वाली साइड पे क्या लिखेंगे 3। और रीड आउट कैसे करेंगे, रीड आउट कैसे करेंगे, 8 is greater than 3, 8 is greater than 3, ओके। और इक्वल टू साइंस किसको शो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेम क्वांटिटी को शो करते हैं, सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल 8 आपके पास रबर बैंड्स हैं और दूसरी साइड पे भी आपके पास 8 ही रबर बैंड्स हैं, तो आप के पास टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, दोनों साइड्स पे इक्वल क्वांटिटी में रबर बैंड्स हैं 8 एंड 8। तो बीच में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अगर लिखते हैं 8 और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 8, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी हम 8 ही लिखेंगे और इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे भी 8 ही लिखेंगे। 8 is equal to 8, 8 is equal to 8। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर सेम साइज में टेडी बेयर हो तो आप क्या कहेंगे, और सेम कलर में भी टेडी बेयर हो तो आप क्या कहेंगे, दे आर द सेम, दे आर द सेम इन कलर, दे आर द सेम इन साइज, दोनों कलर में भी सेम है और साइज में भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे, दे आर द सेम इन साइज, दे आर द सेम इन कलर, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास सेम नंबर में हो, सेम क्वांटिटी में हो और सेम साइज में हो, उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल, दे आर इक्वल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, let's watch a video in order to better understand the concept of greater, smaller and equal to. Greater than, less than, equal to symbols. Starry, have you seen this long green animal before? Yes, it is an alligator. Hasn't it got a big mouth? It looks so hungry. It can eat up all these little fishes. Now, Starry, take a closer look at the shape of its mouth. The shape is like this. Do you know what this sign is? It is the greater than sign. To help you remember the greater than sign, just think of the alligator and its open mouth. Remember, the alligator always eats a greater number of fishes. Suppose we have 5 fishes and 3 fishes. We write 5 is greater than 3. The mouth of the alligator, Starry, is open towards the greater number of fishes. The closed part of the mouth points to the smaller number of fishes. Here we have 7 fishes and 2 fishes. Now 7 is the greater number of fish. And so the mouth of the alligator will be open towards 7, Starry. We write 7 is greater than 2. Starry,
Suppose we want to show one number is less than another. All we have to do is turn the alligator's mouth around. Because remember, the alligator always eats the greater number. So, if we have 3 fishes and 8 fishes, we write it as 3 is less than 8. And if we have 5 fishes and 7 fishes, we write it as 5 is less than 7. Don't forget the alligator's open mouth. And 2 less than 5 is written as 2 less than 5. Remember, Starry, greater than and less than are 2 different signs. Now, Starry, what if we have the same number of fish? Then we use the equal sign. Say 3 fishes and 3 fishes is written as 3 equals 3. And 7 equals 7 is written as 7 equals 7. Now that you have learnt your signs, Starry, can we do an activity together? Fill in the blanks with the correct sign greater than, less than, or equal to. Let's begin. 5 flowers dash 8 flowers. 5 flowers are less than 8 flowers. 9 leaves dash 2 leaves. 9 leaves are greater than 2 leaves. 10 ants dash 5 ants. 10 ants are greater than 5 ants. 4 butterflies dash 4 butterflies. 4 butterflies equals 4 butterflies. 4 bees dash 10 bees. 4 bees are less than 10 bees. In this activity, you have to say whether the signs used are correct or wrong by putting a tick or a cross. If wrong, we have to correct the signs. 8 is less than 8. Wrong. Starry, the correct answer is 8 equals 8. 1 is less than 8. Correct. 2 is greater than 4. Wrong. The correct answer is 2 is less than 4. 4 is less than 3. Wrong. What do you think is the correct answer, Starry? Yes, the correct answer is 4 is greater than 3. 8 is greater than 2. Correct. 5 equals to 5. Correct. Wasn't the alligator a great help in learning the
different signs, Tari? Remember, the alligator is always hungry and so eats the greater number of fishes. Now moving to the next one. I hope you like the video and it will help you to understand the concept of greater, smaller and equal to. Now here we have a picture, and in this picture we have butterflies and flowers. Can you count the butterflies with me? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 butterflies in this picture. And how many flowers are there? Count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 flowers are there. 6 butterflies and 6 flowers are there. So which sign we have to put to show the numbers? We have 6 butterflies and 6 flowers, which are the same in quantity and same in numbers. So we have to put this sign, equal to sign. We have to put this sign to show 6 equals 6. 6 equals to 6. Now moving to the next one. Now here we have a number line, and can you tell me what is a number line? A line which shows the number on it is called a number line. एक लाइन जो के नंबर्स को शो करती है, हम उसे क्या कहते हैं? नंबर लाइन. और यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर्स हैं? नंबर लाइन कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है? 0 से. और कौन से नंबर पे एंड हो रही है? 9 पे. These numbers are 1 digit number. All these numbers are 1 digit number. ठीक है? ये लाइन सारे 1 digit numbers को शो कर रही है. We know that from 0 to 9 all are 1 digit numbers, and 0 is the smallest 1 digit number and 9 is the greatest 1 digit number. मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है and 0 is the smallest 1 digit number, और 9 हमारे पास greatest 1 digit number होता है, क्योंकि 9 के बाद हमारे पास 10 आता है जिसमें 2 digits हैं, 1 और 0. 0 एक डिजिट है और 1 एक डिजिट है. सो 10 हमारे पास 2 डिजिट्स में आता है और 10 हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है. सो हमारे पास 1 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, और कहाँ पे एंड होते हैं? 9 तक. ठीक है? So we know that from 0 to 9 all are 1 digit numbers, and 0 is the smallest 1 digit number and 9 is the greatest 1 digit number. Now we will move to the next one. Here we have comparison of 1 digit number. अब हम comparison करेंगे 1 digit numbers के. 1 digit numbers का comparison करेंगे. नंबर लाइन में
0 के बाद राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 0 से बड़ा क्या है 1 और 1 से बड़ा क्या है 2 और 2 के बाद क्या कौन सा नंबर आता है 3, 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, 4 इज ग्रेटर देन 3 और 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, 6 इज ग्रेटर देन 5 और 6 के बाद कौन सा नंबर आता है 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है 8, 8 इज ग्रेटर देन 7 और 8 के बाद कौन सा नंबर आता है 9, सो 9 इज ग्रेटर देन 8। इसी तरह 0 के बाद राइट साइड पे जितने भी नंबर्स जाते हैं वो सारे ग्रेटर नंबर्स हैं, ठीक है। So here we have three candies here, 1, 2, 3. We have 3 candies on the right side and then we have 2 candies on left side. हमारे पास राइट साइड पे 2 कैंडीज हैं और लेफ्ट साइड पे 3 कैंडीज हैं। नाउ टेल मी विच are more in numbers, which are more in quantity. कैंडीज कौन सी साइड पे ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैंडीज ज्यादा क्वांटिटी में है, मोर क्वांटिटी में है, तो हम क्या कहेंगे 3 कैंडीज इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। एलिगेटर का फेस किस साइड पे आएगा 3 कैंडीज की तरफ। एलिगेटर कौन सी कैंडीज को खाएगा जो ज्यादा हैं। एलिगेटर्स का फेस कौन सी साइड पे आएगा 3 कैंडीज की फेस की तरफ आएगा, 3 कैंडीज की तरफ आएगा। नाउ हियर वी हैव 3 फिशेस, 5 फिशेस, 1, 2, 3, 4, 5। Here we have 5 fishes on the left side and here we have 9 fishes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here we have 9 fishes on the right side. So alligator कौन सी fishes को खाएगा जो ज्यादा हैं, वो एलिगेटर 9 फिशेस को खाएगा rather than 5 फिशेस। एलिगेटर 9 फिशेस को खाएगा क्योंकि वो तो हमेशा उसको ज्यादा भूख लगी हुई होती है, तो वो 9 फिशेस को खाएगा और 5 इज लेस देन 9। अब देखें एलिगेटर का ओपन माउथ किस साइड पे आया है, जहां पे मोर क्वांटिटी है, जहां पे ज्यादा फिशेस हैं, और एलिगेटर का क्लोज फेस किस साइड पे आया है, जहां पे लेस क्वांटिटी में फिशेस हैं। फिशेस यहाँ पे कितनी है 5 और यहाँ पे कितनी है 9, सो 5 इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है, 5 इज लेस देन 9। Now here we have 4 ice creams. Here we have 4 ice creams with different flavors. And here we have also 4 ice creams with different flavors. Now 1, 2, 3, 4. 4 ice creams are on the left side and 4 ice creams 1, 2, 3, 4. 4 ice creams on the right side. 4 is equal to 4. 4 is equal to 4. This is the sign of is equal to. This is the sign of equal to. This is the sign of equal to. 4 is equal to 4.
4 is equal to 4. Now moving to the next one. Here we have your book page. Fill in the blanks with greater than, less than और equal to sign. हमारे पास ये क्या है, एक वर्कशीट बनी हुई है. हमने यहाँ पे ब्लैंक्स में साइन का नेम लिखना है और इन क्लाउड्स में हमने उस साइन को मेंशन करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन डन है. 4 इज ग्रेटर देन 3. 4 क्या है, नंबर 3 से बड़ा है. 4 इज ग्रेटर देन 3 और हमने साइन कैसे शो किया है, 4 इज एलिगेटर्स ओपन माउथ किस तरफ है, ग्रेटर नंबर की तरफ है एलिगेटर का ओपन माउथ. तो 4 इज ग्रेटर देन 3. 4 is greater than 3. And here we have 2 is less than 9. 2 is less than 9. और यहाँ पे हमारे पास एलिगेटर का फेस चेंज हो जाएगा और वो राइट साइड पे हो जाएगा ऐसे, लाइक दिस. इस साइन को हम चेंज कर देंगे. ये साइन यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आएगा, दिस वन. दिस वन एलिगेटर का फेस ओपन फेस किस तरफ चला जाएगा, 9 की तरफ, बिकॉज 9 इज अ ग्रेटर नंबर. 9 इज अ ग्रेटर नंबर. So 2 is less than 9 and we have to write 2 is less than 9. Then we have to write 8 is greater than 3. 8 is greater than 3. आपने यहाँ पे greater than लिखना है, GREATERTHAN. then 8 is greater than 3. यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 8 is ग्रेटर साइन डालना है यहाँ पे आपने. और ग्रेटर साइन कैसे होता है, ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस. यहाँ पे आपने लिखना है ग्रेटर साइन. 8 is greater than 3. 8 is greater than 3. Then you have to write here 1 is 1. 1 is ब्लैंक में क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1. 1 is equal to 1. और यहाँ पे इस क्लाउड में क्या लिखेंगे आप, कौन सा साइन डालेंगे, दिस वन. 1 is equal to 1. 1 is equal to 1. Now 6 is greater than 2. 6 is greater than 2. Here you have to put this sign. 6 is greater than 2. 6 is greater than 2. Now 5 is less than 7. 5 is less than 7. Here you have to put this sign. This sign to show 5 is less than 7. Now moving to the next one. Here's your homework. Do question number 5, 6 and 7 on your notebooks. Good luck. Take care. Allah Hafiz.